Today we have to discuss about PN junction. PN junction, clear? P means you are talking about P type, clear? And N means you are talking about N type. Here we have a summary like that. P type means majority or holes. Majority holes. Is it clear? N type means majority electrons. Getting my point? Majority electrons. P-type majority holes, N-type majority electron. Junctions where it's a meeting place, right? Meeting place where both will meet together, right? Simply, whenever you are talking about PN junction, what is the meaning of a PN junction? We have to complete it. It's a basic building block of any semiconductor, right? It's a basic building block of many semiconductor devices like diodes, transistors. Clear? We have to study about the working characteristics and all of PN junction. We have to study about when PN junction is externally connected with the circuits, what will happen in that also. We have to study this thing also, right? We have to study about biasing also, right? We have to study about bashing also. That one is bashing, right? We have to study about bashing also, right? What is the meaning of bashing? Clear? So what we have to do in that we have a PN junction, P-type material needed and N-type material needed, and both are get together when there is a formation of PN junctions. When the PN junction will form, when P-type, V-type and N-type get together, that PN junction formation will take place. When two things will get together, definitely something will happen there, right? Definitely something will happen here, because in P-type we have majority holes and in the N-type we have a majority electrons, right? And the minority, if you can talk about the P-type, you have a minority electrons, and in N-type we have a minority, that one is holes. Is it clear? This one is the meaning of PN junctions, right? This one is a basic building block, right? सबसे बेसिक क्या है ट्रांजिस्टर में, राइट? इन सब के लिए स्विचेस वे क्या होना चाहिए, पीएन जंक्शन के बारे में नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बेसिकली उसके बारे में जानना हमें जरूरी है जब हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ते हैं, तो ये उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, राइट? हाउ द जंक्शन बिहेव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज आल्सो कॉल्ड बायस। जब एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज हम लगाते हैं, जो इसको हम बायस बोलते हैं, बायसिंग करेंगे, जब हम बायस करेंगे मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इस जंक्शंस के एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा, वी हैव टू स्टडी दिस थिंग आल्सो, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, हाउ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन. This one is the things related with the PN junction. This one was the introduction of the PN junction. Now we will study about PN junction formation, right? PN junction formation. Then you can talk about PN junctions formation. Clear? When you can talk about PN junction, we have a PN junction formation. Clear? You can talk about PN junction formation. Is it clear? When you can talk about PN junction formation, we have to consider a thin P-type, right? We have to consider a thin P-type silicon PSI, right? We have to consider PSI. That one is PSI semiconductor. Is it clear? We have to take PSI semiconductor wafer, right? Wafer का मतलब क्या होता है? That one when you can talk about wafer, you are talking about like slits, right? जो slits हम बनाते हैं, जैसे क्या होता है कि if you can take the bread, right? तो bread का पैकेट लेते हैं, 1 2 3 4, एक के ऊपर एक पे क्या होता है, पंचेज होता है, राइट? सैंडविच कब बनता है, जब सारे ब्रेड को एक साथ किसी भी चीज के, यू कैन टेक एनीथिंग एंड देन यू आर पेस्टिंग, जब आप उसको पेस्ट कर देते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं, तो सैंडविच में तो सैंडविच अब हम बनाएंगे, पहले हमारे पास ब्रेड होना चाहिए, तो ब्रेड का मतलब क्या होगा, वेफर, दैट वन इज थिन लेयर, राइट? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थिक लेयर, वी आर टॉकिंग अबाउट थिन लेयर. पीएसआई का थिन लेयर होने लिया है, राइट? व्हेन यू कैन टेक पीएसआई मींस सेमीकंडक्टर जो होगा वह सिलिकॉन मटेरियल हमने लिया है, और कौन सा लिया है, पी टाइप लिया है. जर्मेनियम में भी पी टाइप हो सकता है, राइट? तो
सिलिकॉन का हमने पी टाइप लिया, पी टाइप पीएसआई सिलिकॉन वेफर, सेमीकंडक्टर वेफर लिया। इसमें हमने क्या किया, जब पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज का एडिशन किया, व्हेन यू कैन ऐड द स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी, पार्ट ऑफ पीएसआई कन्वर्टेड इनटू एनएसआई। तो जैसे ही पेंटावैलेंट इमर्ज करेगा तो पीएसआई किसमें चेंज हो जाएगा, एनएसआई, इट विल चेंज इनटू द एनएसआई एज आई टोल्ड, राइट। इसको हटा दो, बस सिलिकॉन की बात करो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो, उसको पेंटावैलेंट से क्या करो, इंप्यूरिटी उसमें डॉपिंग कर दो। When you can top it, it will change into something else, NSI, right? Now we have a wafer, right? Wafer या layers हमने बनाना शुरू किया, clear? So बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है जैसे सेमीकंडक्टर का फॉर्मेशन होता है। It's are many things from where we are making a semiconductor, right? So in the wafer what you are getting n region also, p region also and n region। आपको क्या मिल रहा है, p region भी मिल रहा है और n region भी। you are getting p region and n region, clear? now we have a two processes, दो processes होंगे formation के लिए, two processes, that one is diffusion और दूसरा जो होगा ड्रिफ्ट। क्या होगा, ड्रिफ्ट, राइट। डिफ्यूजन प्रोसीजर कब होता है, पहले इसको समझो, डिफ्यूजन कब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन, राइट। डिफ्यूजन कब होता है, जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा हो, डिफ्यूज होके वे बाहर आएगी, राइट, व्हेन इट विल कम आउटसाइड। व्हेन यू कैन टेक अ ग्लास and the glass filled totally with the water, the more water will come outside। आप बढ़ते जाएंगे ब्रीम तक, ग्लास अपने ब्रीम तक भरा हुआ है, ब्रीम के बाद में कहाँ निकले, बाहर पानी निकलेगा, मिल्क विल बी आउटसाइड। Drift means, what is the meaning of a drift? Drift means one is colliding with the other, एक दूसरे को collide कर रहा है। That I am pushing you, you are pushing other one, you are pushing other one, और आप बाहर निकल के आ रहे हैं। That one is simply drift. You are doing the drift, right? Drift velocity जैसे आपने पढ़ा था, तो that drift, तो both procedure will take place, diffusion procedure and drift procedure will take place for the formation of PN junction। PN junction को फॉर्म करने के लिए ये दोनों प्रोसीजर होना इंपॉर्टेंट है, that one is diffusion and the drift, clear? now what we have, if you can go for the diffusion and drift, that when you can talk about n-type semiconductor, in n-type semiconductor the concentration of electron will be high, and in the p-type semiconductor the concentration of holes will be high, right? Because majority in the p-types are holes and minority will be electron, and in the n-type you will get majority as a electron and minority as a holes, right? Now what will happen, that if you can take this one, right, you can take this one, you can take p-type and n-type, which one is holes are majority, होल्स या मेजॉरिटी को, ये सर्कस ही समझना है, ये स्टडी अबाउट दिस सर्कस। दो लेयर एक दूसरे के ऊपर वेफर, ये वेफर 1 वेफर 2 सैंडविच करेगा, सैंडविच बना रहा हूं। नाउ सैंडविच इज गोइंग ऑन, दोनों की प्रॉपर्टीज तो अलग अलग, दोनों के चार्जेस अलग, एक कौरव है तो एक पांडव है, दोनों को कंबाइन करना है तो कुरुक्षेत्र तो होगा ही, कुरुक्षेत्र होगा, और कुरुक्षेत्र स्टार्ट हो चुका है। ये पॉजिटिव इसको कौरव पांडव ले लो, इसको कौरव ले लो, राइट। नेगेटिव तो ऐसे भी कौरव थे, ये पॉजिटिव थे। अब क्या होगा कि यहाँ पे तो होल्स ज्यादा थे, ज्यादा होल्स, यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, होल्स, मेजॉरिटी इज होल्स, and here majority is electron, majority electron, clear? याद हुआ, याद करना जरूरी है, तो ये ग्राफ दिमाग में नहीं बैठता। यहाँ मेजॉरिटी क्या होगा, होल्स। अब आप कहेंगे सर अगर यहाँ होल्स है तो यहाँ निगेटिव क्यों है, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव क्यों है, सिंपल सी बात है। इसमें माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन,
मेजोरिटी क्या है? होल्स। होल्स। जो माइनॉरिटी में है, राइट, और इधर माइनॉरिटी में क्या है? होल्स, राइट। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, one time diffusion will take place and one time drift will take place. Electron drift. यस सर। अब यहीं से एक चीज क्लियर हो जाएगी कि होल्स तो कुछ भी नहीं करते, राइट? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन प्रोसेस, राइट? क्लियर? And what you are getting, hole, diffuse, hole, drift. देखते हैं कैसे चलता है। Clear? Getting my point? अब इसको समझते हैं। What we are actually getting in p type? Majority or holes? Here majority or electron? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है जो माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में होल्स है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव। कितने भी इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट तो रहेगा। वे एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। कोलाइड करेंगे होल से भी कोलाइड करेंगे। होल्स उनको बाहर की तरफ करेंगे, यू गो आउटसाइड। हम जाते हैं, यू आर लेस, यू गो आउटसाइड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री है तो रैंडमली मूव करेगा, राइट? इट विल मूव रैंडमली। वे कोलाइड करेगा, कोलाइड करते 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 यहां तक आएगा। इसके बाद ये इट विल कम आउटसाइड। इस लेयर से बाहर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा, राइट? यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या किया? ड्रिफ्ट किया। और होल क्या किया? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, होल डिफ्यूज किया, राइट? होल्स अपने आप में क्या है? ज्यादा मेजॉरिटी में, राइट? इट्स इन अ मेजॉरिटी, ऑलरेडी मेजॉरिटी में है, इसमें पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट है। तो जो माइनॉरिटी में है उसको क्या कर दिया? बाहर कर दिया। यू विल गो आउटसाइड, वी विल बी इनसाइड। क्योंकि ऑलरेडी हम मेजॉरिटी में हैं और हमारे पास वी डोंट हैव अ प्लेस फॉर यू पीपल्स, सो यू विल गो आउटसाइड। यू आर फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी। यस सर। नाउ व्हाट वी आर? एन टाइप मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। Is it clear? Majority electron. Electron diffuse. What will happen? Electron diffuse. Electron करेगा diffuse, क्योंकि वह केस में है majority में। Electron diffuse करेगा, होल क्या करेगा? Drift करेगा, right? अब होल का मतलब ही क्या होता है समझो। इलेक्ट्रॉन जो प्लेस अपना छोड़ता है वहाँ पे क्या होता है? वैकेंट हो जाता है, राइट? इलेक्ट्रॉन अपना काम करता रहेगा, होल कुछ भी नहीं करेगा, ना इधर करेगा कुछ, इलेक्ट्रॉन की वजह से इधर भी इलेक्ट्रॉन भी काम करेगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन भी काम करेगा। इधर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा और इधर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा। ड्रिफ्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज लेस, इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ेगा, वहां पे होल आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस को छोड़ेगा, ये होल यहाँ पर साइड 1 टू साइड 2 टू साइड 1, ये चीज यहाँ पर होगी। होते होते क्या होगा? एकदम बैंक ऑफ रिवर, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे आ गए। नदी के किनारे आ गए तो जंप करके बाहर चला जाएगा, तो जगह है नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? और ये मेजॉरिटी में है, वे यहीं रहे, उनको तो वहीं रहना है। वे क्योंकि वे क्या करते हैं? होल्स क्या करते हैं? वैकेंट प्लेसेस को कैरी करते हैं। वैकेंट प्लेस का मतलब होल, सिंपल। और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो ये ध्यान में हमेशा रखें, होल को मूव मत करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा हर जगह। यस सर। तो इसी वजह से यहाँ ड्रिफ्ट बोला गया। कोलाइड करते करते एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे आते आते इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, राइट? यहाँ इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा है, एक्सेस हो चुका है। जब एक्सेस हो गया है तो ऐसे ही क्या करना चाहता है, राइट? एक्सेस है, जब एक्सेस में है तो जो जो वैकेंट प्लेस छोड़ेगा वे क्या बनते जाएगा? वहां पे होल्स बनते जाएगा, राइट? वहां पे क्या होते जाएगा? होल्स होते जाएगा, दैट इज होल्स होल्स होल्स। वहां पे क्या होते जाएगा? होल्स होते जाएगा। जब वहां होल्स होते जाएगा तो होल्स क्या हो जाएंगे अब? लेकिन इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वी हैव टू मच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट दे आर नॉट गेटिंग, होल्स आर नॉट गेटिंग, होल्स इतने ज्यादा वहां पे नहीं हो पा रहे, राइट? बार बार वे इलेक्ट्रॉन इसमें पूरी तरीके से कैप्चर्ड हो गए। जब कैप्चर्ड हो गए, व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल कैप्चर दिस वन, राइट?
इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा, कैप्चर करेगा। तो बचेगा ही यहाँ पर क्या, ये अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ बचेगा ही नथिंग, नथिंग ना, व्हाट इट विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे इसलिए क्या गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज, होल डिफ्यूज, होल डिफ्यूज एंड हियर होल ड्रिफ्ट। यहाँ पे होल क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। ये वैकेंट प्लेसेस लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, राइट, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे। अब यहाँ पे बैंक पर जब आएंगे, वहां पर when they become here, right, the concentration level of electron will be high। तो यहाँ पर भी जाके भी वही काम करेंगे, यहाँ पर फिर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, फिर वैकेंट होंगे, फिर ये बैक चले जाएंगे, राइट, इट विल गो बैक साइड। यहाँ पे क्योंकि वहां पे होल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, वैकेंट प्लेस हो जाएगा, फिर ये बैक चले जाएगा, राइट, बैक एंड फोर्थ, I told back and forth is going on, right? So this kind of thing will happen, and here जितने holes होंगे, whatever the number of holes, same will be the number of electrons। जितने number of holes यहाँ होंगे, उतने ही number of electron यहाँ पर होंगे। क्लियर? इसको, ये जो लेयर फॉर्म होगा दोनों के बीच में, इसको बोलेंगे डिप्लेटेशन लेयर। The layer will be simply known as depletion layer. Is it clear? Simply known as depletion layer. Yes. Right? ये लेयर क्या बोला जाएगा, डिप्लेटेशन लेयर। और ये जब डिप्लेटेशन लेयर बनेगा, here the depletation layer will be there, जितने number of, whatever the number of electron is equal to the number of hole, and both will collide with each other, right? Both will collide with each other. Clear? Both will collide with each other and collide with each other, and what will happen when the collision will take place? Negative is collide with positive and positive will collide with negative. Both will collide with each other. What will happen? The junctions, this one will be neutral. ये क्या हो जाएगा, neutral हो जाएगा, it will be neutral। इसी वजह से कहा जाता है कि पीएन जंक्शन जो होता है क्या होता है, neutral, right? You will get neutral। जो डिप्लेटेशन लेयर बनेगा, that one is 10 power minus 6, right? The depletation layer will be, the thickness of depletation is of the order of 1/10 of a micrometer, 10 power minus 6 micrometer का क्या बनेगा, that one is the depletation layer की thickness हो। Clear? And it's given also when an electron diffuses from N to P, it leaves behind an ionized donor on N side. This ionized donor, positive charge, is immobile as it is bonded to the surrounding atoms, right? As the electron continue to diffuse from N to P, a layer of positive charge on the N side of junction is developed, as I told, right? मैंने अपने तरीके से बताया कि वे इमोबाइल होगा। इमोबाइल का मतलब, मोबाइल का मतलब चलने वाला, इमोबाइल का मतलब चल नहीं पाएगा, राइट? कहानी क्या है, सिंपल, ये ऐसे याद कर लो, राइट? ये होगा। ये अभी बिना बैशिंग का था, अभी मैंने बैशिंग, एक्सटर्नल कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया, राइट? Now what we have, the motion of charge carried due to electric field is called drift. Thus a drift current which is opposite in direction to diffusion current, right? Due to positive space region on N side of the junction and negative space charge region on P side of the junction, an electric field directed from positive charge towards negative charge develop। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, करंट विल डेवलप, and current will develop, one is the drift current and another one is the diffusion current। एक क्या होगा, drift current होगा, और एक क्या होगा, diffusion current होगा। Clear? One is drift current and another one is diffusion current। But what will happen, the charges are equal, both are cancelling each other। Is it clear? And thus a PN junction is formed। in a PN junction directly there is no net current। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करेंगे तो जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बोथ विल कैंसिल ईच अदर, एंड देन ड्रिफ्ट करंट विल कैंसिल द डिफ्यूजन करंट बिकॉज बोथ हैव अ सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन विल बी डिफरेंट। दैट्स द रीजन ड्रिफ्ट करंट विल कैंसिल द डिफ्यूजन करंट। इज इट क्लियर? सो नेट करंट विल बी जीरो। क्लियर? So N material is thus positive related to P material, since this potential tends to prevent the movement of electron from N region to P region, is often called a barrier potential, right? Barrier potential, that one is simply, that one is W, that one is ये ब्रिज, इसको हम क्या बोलेंगे, barrier potential, क्योंकि ये क्या कर रहा है, barrier create कर रहा है, right? It's creating the barrier। Is it clear? So what we have to do now, we have to go for a bashing, right? अब हम बैशिंग के बारे में, क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल।
Now we have to talk about semiconductor diode. अब किसकी बात करेंगे? We will study about semiconductor diode. Semiconductor diode. Here. Semiconductor diode metallic contact depletion layer. Now what we have? We have to talk about semiconductor diode. Basically ये पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसमें क्या होता है? What we are doing, we have a metallic contacts दोनों साइड, इस साइड में भी और इस साइड में मेटालिक कॉन्टैक्ट्स लगा देते हैं. क्लियर? तो सिंपली हम अगर देखें इसको हम रिप्रेजेंट कैसे, राइट? सिंबल इसका ये है, राइट? दिस वन इज पी एंड दिस वन इज एन. मतलब सेमीकंडक्टर डायोड का मतलब ये हुआ कि उसके लिए हमें पीएन जंक्शन को फॉर्म करना पड़ेगा. पीएन जंक्शन हमने फॉर्म किया, सैंडविच किया, राइट? हमने कोशिश की है दैट बोथ विल बी टुगेदर, बट वी हैव अ एक्सटर्नल कांटेक्ट आल्सो. मतलब ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल पोटेंशियल से क्या होगा? ज्वाइन होगा, कनेक्ट होगा. एंड व्हेन इट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल वी हैव टू टाइप ऑफ कनेक्शंस. द टू टाइप ऑफ कनेक्शंस आर फॉरवर्ड एंड रिवर्स. द फर्स्ट वन इज द फॉरवर्ड एंड सेकंड रिवर्स. Forward passive and reverse. We have to go for forward passive and reverse. Magic will start soon. Forward passive. P-type holes are majority. N-type electrons are majority. When P-type connected to positive and N-type connected to negative. This one is positive, this one is negative. The smaller one is negative, yes sir. The other one is positive. When P-type connected to positive and N-type connected to negative. External voltage is you are applying the battery there. P-type connected to positive and N-type connected to negative, then the passive will be forward. Passive क्या होगा? Forward. पहला तो ये सब, फिर बताएंगे कि फॉरवर्ड का मतलब और क्या होता है. Introduction. Now change it. When P-type connected with negative and N-type connected with positive, then you are getting the reverse passive. The passive will be reverse. Passive क्या होता है? P-type positive to negative. N-type connected to positive, the reverse will take place. And if they are connected to P-type connected to positive and N-type connected to negative, forward will be, that you are talking about forward passive. Clear? This one is the meaning of passive. Passive means appliance of an, you are applying the external voltage and the semiconductor diode is connected with that external potential. Then whatever the things, whatever the characteristic it is showing, we have to discuss it. Is that clear? Now when you can talk about the PN junction under forward passive,
the PN junction under forward passing. Clear? You may talk about forward passing. You can talk about forward passing. Then you are talking about forward passing. Getting smaller. Forward passing. Forward. Be positive and negative. Get clear? Forward passing. Now what will happen? P type connected to Positive. positive, P type connected to negative. There is no stretching. कोई stretching नहीं होगा. Right? It will be at its own position. Clear? ये अपने आप position पे रहेगा. Right? इसमें कोई change नहीं होगा. There is no change at all in the width of the deprecation. Clear? कोई भी drift में change नहीं होगा. Clear? Clear? Now what we are getting that when you can talk about the applied voltage, the applied voltage mostly drop across the depletion layer and the P side and N side of junction is negligible. This is because the resistance of depletion region where there is no charge is very high compared to resistance of N side and P side. यहाँ पे जब कोई चार्ज ही नहीं रहेगा क्योंकि तो न्यूट्रल हो चुका है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है. जब यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं होगा तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? When there is no charge at all. Clear? When there is no charge at all, a region where there is no charge is very high compared to resistance of N side and P side. इन दोनों के रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? कि there is no charge at all. When there is no charge, no charge carrier. When there is no charge carrier, there is no current. The conductivity will be low. The resistivity will be high. Right? So in the same manner, if you can talk about the direction of applied voltage is opposite to the built-in potential. Built-in potential means जो potential यहाँ built होता है अपने आप से, उससे ये reverse direction में जो आपने apply किया होता है. Is it clear? It will be in reverse direction. Everybody know because P से minority निकला और N से भी minority निकला. तो इनका direction और जो आपने apply किया है इन दोनों का direction में क्या होगा? Difference होगा. Potential दोनों का क्या करेगा? Differ करेगा. And what will happen? The depletion layer width decreases and the barrier height is reduced. तो depletion region का जो decrease करेगा का मतलब समझो ये अपनी जगह पे ही रहेगा क्योंकि अभी मैंने n टाइप पढ़ाया नहीं, सॉरी रिवर्स पढ़ाया नहीं. जब रिवर्स पढ़ाऊंगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि उसके कंपेयर में डिक्रीज करेगा. In comparison to the reverse passing, the depletion layer will decrease. The depletion layer will decrease. Is it clear? And the depletion layer will increase and the barrier height is reduced. The effective barrier height under forward pass is V0 minus V. V0 minus V. ये barrier height होगा. Barrier height का मतलब क्या हुआ? जो barrier potential की जब आप बात करें that one is V0 minus V. Height का मतलब यहाँ वे वाली height नहीं बन सकती. That your level of living is too high. तो हाई का मतलब क्या होगा? मतलब लेवल ऑफ लिविंग आपकी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका क्या है? बहुत अच्छा, उस तरह की है हाई. इज इट क्लियर? सो व्हाट यू आर गेटिंग V0 minus V. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V0? built-in potential V0, राइट? एंड V इज द अप्लाइड पोटेंशियल. V क्या है? अप्लाइड है और ये built-in potential. तो दोनों का जो डिफरेंस लेंगे V0 minus V. देयर नाउ व्हाट वी आर गेटिंग, अगर अप्लाइड वोल्टेज स्मॉल है, इफ यू आर गेटिंग इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज स्मॉल, the barrier potential will be reduced only slightly below the equilibrium value. Only small number of carrier in the material. Clear? What you are actually getting, that you are getting at the depletion layer, you are getting all the things will be zero, right? यहाँ पर आपको यही मिल रहा है कि that if the applied voltage is small, अगर ऐसा हो कि applied voltage क्या हो जाए? Small हो जाए, right? The barrier potential will be reduced only slightly below the equilibrium value and only a small number of carriers in the material. Those that happen to be in the uppermost energy level, right? Those that happen to be in the uppermost energy level, clear? Will possess enough energy to cross the junction. They will go forward to cross the junction. But what will happen? तो यहाँ पे current will be क्या हो? Current will be small. If we increase the applied voltage significantly, the barrier height will reduce and more number of carrier will have required energy, so current will increase. When you can increase the applied voltage, the current will also increase because at that time
what will happen? Clear? What will depreciation layer height will, जैसे ही आप करंट डिक्रीज करेंगे, राइट, अप्लाइड वोल्टेज आप डिक्रीज करेंगे, करंट आपको डिक्रीज मिलेगा, लेकिन जब आप इंक्रीज करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज करके मिलेगा। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज the barrier height will be reduced and more number of carriers will have the required energy and thus the current will increase. So what you can say that depending upon the applied voltage. Clear? Depending upon the applied voltage. Is it clear? Totally depending upon the applied voltage. What voltage you are applying depending on that one. Clear? So यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे when you are applying the voltage, when you can apply the voltage, due to the applied voltage, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n साइड क्रॉस द डिप्लेटेशन एंड रीच द p साइड। यहां से n साइड से इलेक्ट्रॉन के जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, n साइड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर की तरफ जाएंगे p साइड की तरफ, एंड फ्रॉम p साइड होल्स विल बी देयर एंड दे विल गो टू द n साइड, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। व्हेन बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, व्हाट विल हैपन? क्लियर? व्हाट विल हैपन? दिस प्रोसेस ऑफ द फॉरवर्ड बायस इज नोन एज माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। ये आपके सिलेबस में है बट मैं बता रहा हूं। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि यहां से एक दूसरे को, राइट, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, व्हेन यू कैन अप्लाई द वोल्टेज फ्रॉम पी साइड, होल्स विल बी देयर इन द, यहां पे माइनॉरिटी क्या था? होल्स था। यहां से होल्स निकल के n की तरफ जा रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जा रहा है? यहाँ पे माइनॉरिटी क्या था? इलेक्ट्रॉन था। अब क्या ज्यादा होते जाएगा? इसका इंजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन ज्यादा कर रहे हैं और यहाँ इंजेक्शन किसका ज्यादा कर रहे हैं? होल्स। इसको बोलते हैं माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। माइनॉरिटी कैरियर इंजेक्शन। जब आप अप्लाइड वोल्टेज देते हैं अपनी तरफ से तो ये ऐसा होता है, n से इलेक्ट्रॉन निकल के p की तरफ जाते हैं, p से होल्स निकल के n की तरफ जाते हैं। इज इट क्लियर? दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन। क्लियर? Due to this concentration gradient, the injection electron on p side diffuse from their junction edge of p side to other end of p side. और ये चीजें होती रहेगी जैसे मैंने डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट आपको बताया था। तो जब आप ऐसे करेंगे तो जो आपको करंट मिलेगा वह मिली एम्पियर में मिलेगा। The current will be in the milli ampere, not in the micro ampere. It will be in the milli ampere. The current will be in the milli ampere. Now come on the reverse fashion. Is it clear? जो वेव था मैंने आपको बता दिया। अब रिवर्स फैशन, जब आप रिवर्स फैशन की बात करेंगे, दिस वन इज द लास्ट टॉपिक। क्लियर? नाउ व्हाट विल हैपन? अभी तक मैंने इसको बताया नहीं था, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था कि ये जब कंपेयर करेंगे तब डिप्लेटेशन लेयर डिक्रीज करेगा, राइट? P and this one is N. Stretching will take place. Stretching N को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और P को आपने किधर कनेक्ट कर दिया? नेगेटिव से। दोनों एक दूसरे का रिवर्स है, अपोजिट साइन विल अट्रैक्ट ईच अदर। इसको इधर ये जो है इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो ये स्ट्रेच कर देगा। व्हेन इट विल स्ट्रेच, डिप्लेटेशन लेयर ब्रीथ विल इंक्रीज। डिप्लेटेशन लेयर का ब्रीथ क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर देगा। पहला केस तो यही था। तो ये आपको दिया हुआ कि जब जैसे ऐसे होगा डिप्लेटेशन लेयर इंक्रीज करेगा और जो यहाँ पे आपको इफेक्टिव बैरियर हाइट अंडर रिवर्स बैस मिलेगा, ये क्या हो जाएगा? V नॉट प्लस V। यू विल गेट V नॉट प्लस V। वहाँ पे क्या हो रहा था? माइनस में था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में V नॉट प्लस V, राइट? नाउ व्हाट विल हैपन? ये सप्रेस करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n to p and holes from p to n. Thus diffusion current decreases enormously compared to the diode under forward bias. Diffusion current क्या करेगा? Decrease करेगा, right? Diffusion current will decrease. Why the diffusion current will decrease? Because n to p holes and from p to n, right? ये flow of electron को suppress करेगा। Suppress का मतलब प्रेस करेगा कि you will not go. फ्लो को इंटरप्ट करेगा, इट विल इंटरप्ट द फ्लो। व्हेन इट विल इंटरप्ट द फ्लो इन कंपैरिजन टू द फॉरवर्ड वेसिंग, यू विल गेट लेस करंट। इन कंपैरिजन टू द फॉरवर्ड वेसिंग यू विल गेट लेस करंट बिकॉज़ इट विल सप्रेस इट। इज इट क्लियर? व्हाई इट विल सप्रेस इट? सिंपली यहां पर क्या होगा? वहां पे इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। p की तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इस n की तरफ क्या जाता है? होल्स। अब यहाँ तो रिवर्स
ऑलरेडी ये इधर से है, मैं इधर से उसको स्ट्रेच करके ब्रीथ इसका इंक्रीज कर देगा, व्हेन द ब्रीथ विल इंक्रीज। और यहाँ पर आपको पता है कि इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है। जब आपने कोई भी आप एक्सटर्नल नहीं अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है, नेट करंट यहाँ पे ऑलरेडी जीरो है। इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये मैक्सिमम कंडीशन। Now what you will get, the electric field direction of junction is such that if electron on p side or holes on n side, their random motion come close to junction, they will set to its majority zone. This drift of carrier quite low because it is due to the motion of carrier from their minority side to majority side across the junction. Minority से majority की तरफ क्रॉस करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर हम बात करेंगे कि माइनॉरिटी फ्रॉम माइनॉरिटी दे आर गोइंग टू मेजॉरिटी एंड दे आर फ्रॉम मेजॉरिटी दे आर गोइंग टू द माइनॉरिटी, राइट। तो यहाँ पर ये क्या, द ड्रिफ्ट करंट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू माइक्रो एमीटर। यहाँ पे जो ड्रिफ्ट करंट होगी वो किसमें होगी, माइक्रो एम्पियर में होगी, वहाँ मिली एम्पियर में होगी जो बहुत लो होगी, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, if electron on p side or holes on n side, their random motion come close to junction. इलेक्ट्रॉन का p side और होल्स ऑन n side, their random motion come close to the junction. उनका जो रैंडम मोशन है जंक्शन के क्लोज हो जाएगा, they are close to the junction, they will be swept its majority zone. वे अपने मेजॉरिटी जोन को क्या करेंगे, स्वेप्ट कर देंगे। स्वेप्ट का मतलब हटा देंगे, कवर कर लेंगे। स्वेपिंग ऑफ एरिया मतलब उस एरिया को आप कवर कर लेंगे, उस मेजॉरिटी जोन में। This drift of carrier gives rise to current, ये करंट को राइज करेंगे, राइट। The drift current is of the order of a few micro ampere. This is quite low because it is due to the motion of carrier from their minority south to the majority south across the junction. क्योंकि minority से majority की तरफ आ रही है, इसलिए ये जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। The value will be low, right? Low, micro ampere। यहाँ पे क्या होगी, रिवर्स में क्या होगा, माइक्रो एम्पियर। Is it clear? Now this is the thing related to the reverse biasing, main things. Now we will go for a graph of a forward biasing and reverse biasing also. So tomorrow I will discuss about it. Clear? Thank you.